Okay. So now I'll be sharing my screen and we will try something on Excel how to do GST reconciliation. And is my Excel visible to all? Is my sheet visible to all? Can we have a yes in the chat box if the Excel is visible? Okay, we have got a yes. Great. Okay. Now see, when we are trying to do GST reconciliation, Vivo 1803, can you just write your name in the chat box or can you rename yourself? Because I'm like cautious of who is joining the session. You have raised your hand. So if you have any queries, you can unmute and speak or you can write in the chat box. Everyone who has signed in with a phone name, please rename yourself. You can just click on your name and rename it. So that would help us. Vivo 1803, whosoever is this, please rename yourself and join again. I'm putting you in the waiting list. Okay. Now in the on the screen, you can see that I have taken the data from the Tally or any other software that you use. तो एक हमारे पास sheet है जिसमें data है 2A as per books. Okay, so this data is like it's having the GSTN, name of supplier, invoice number, invoice date, taxable value, IGST, CGST, SGST, and cess. So it can be your GST ledger or it can be from a purchase dump also. So जब भी हम GST reconciliation कर रहे हैं, we have to take the data from the portal as well as from the uh, our books, and then we want to find out whether all the invoices that we have in our books are the same as there in the portal. Okay, if there are some additional invoices on the portal and which are not there in the books, then we have to claim that. If we have claimed some invoices which are not there on the portal, then we have to tell the supplier to upload those invoices. Okay, so fine. Now, what you have to do is see, ये जो हम session रख रहे हैं, I'll be starting with very basics क्योंकि I don't have any idea about the audience. I'm assuming that सब लोग पहली बार सीख रहे हैं या अगर आपने पहले से भी एक्सेल में आपको पिवट टेबल या एक्स लुकअप आता है तो भी आप ये सेशन में कुछ ना कुछ नया यहाँ से सीखते जाएंगे. तो आई वुड लाइक एवरीवन टू बी active in the chat box so that I will have some idea about how you are finding this session. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमने दो डेटा लिया है. एक डेटा हमने लिया है जीएसटी पोर्टल से. One data I've taken from the GS my books, and these two sheets we have taken. So this is the data from the portal. When you download a 2A or 2B, it looks like this. I hope everyone is familiar with this format. Can we have a yes in the chat box? सब लोगों ने ये 2A देखा है, डाउनलोड करते हैं हर महीने और बुक्स के साथ रिकंसाइल करते हैं, चेक करते हैं. ठीक है. Now when you download the data from the portal, there are some issues in the data. सबसे पहला इशू क्या आता है कि ये आप देख रहे हैं कि रो रिपीट हो रही है. यू आर सीइंग दैट द रो इज रिपीटिंग. सो एवरी एंट्री ऑफ जीएसटी एंड डिफरेंट जीएसटी इज रिपीटिंग इटसेल्फ. ठीक है, तो देयर आर सम एंट्रीज व्हिच आर रिपीटिंग. So what you have to do is you have to remove the duplicate entries. Now can anyone tell me how can we remove the duplicate entries? So there is one person, Mr. Black Fox. Can you just rename yourself to be there in the meeting? Because we have a rule that we will allow only the participants who have proper names. So if you can put your real name, it will be good. Else I'll have to put you in the waiting room again. So requesting everyone to put your original name in the meeting.
so that there is no spammer in the meeting. I request everyone to be on the to be on mute, please. So I'm just removing all the suspicious people. So if some activity is not proper, then I will remove that person for the benefit of all. Okay. So Nilesh ji, please put yourself on mute. I'm muting you. So if you have any queries, then you can definitely unmute and ask. But if you don't have any queries, then please listen to me what I'm saying. तो देखिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है इस डेटा में कि जब भी हम डेटा को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दो तीन चीजें एक्सेल की बेसिक में आपको दिखा दूंगा कि जब भी हम डेटा स्क्रॉल करते हैं जब भी मूव डाउन तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हेडिंग्स दिख रही है हमारे को और ये नीचे का जो डेटा है वो स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन अगर आप पहली वाली शीट में देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप नीचे मूव करो यहाँ पे भी ऐसा है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? एनीवन हु नोज अबाउट दिस? क्योंकि अगर मैं इस शीट को अगर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इफ आई पेस्ट इट इन अ न्यू शीट तो आप देखेंगे कि यहाँ से हेडिंग गायब हो गई। दिस हेडिंग इज नॉट विजिबल एनीमोर। So can anyone tell me what function of Excel you use so that the heading remains on top when you scroll down the data? Freeze option. Freeze Can option. someone answer in the chat box? My question is कि when you scroll down the data, the heading is going. हमें ये पता नहीं पड़ रहा कि किस कॉलम में क्या डेटा है। तो अगर हमें इसको रखना है राइट, so Himanshi is right, freeze panes. Now those who don't know, जिन लोगों को ये चीज नहीं पता है या आप देखना चाहते हैं कि कैसे हम इस डेटा को फ्रीज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम काम में लेते हैं फ्रीज पेन। Okay, so how to apply freeze pane? So first we will see how to filter the data, and then we will go about with the reconciliation. It will be a 40-45 minute session and 45 minutes में आपको प्रॉपर रिकंसिलिएशन आ जाएगा कैसे करते हैं। तो पहले हम जाएंगे व्यू टैब में और व्यू में आप देखेंगे एक ऑप्शन दिखेगा आपको फ्रीज पेन। ठीक है, अब आपको फ्रीज पेन लगाना कहाँ है? जिस भी रो तक आप डेटा देखना चाहते हैं, मतलब मैं हेडिंग देखना चाहता हूँ उसकी नीचे वाली रो पे आप आएंगे and then you will place the freeze pane. Similarly, जिस कॉलम तक आप डेटा देखना चाहते हैं उस कॉलम तक आप आ जाएंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, वो हम जनरली एक एक कॉलम को ड्रैग करके एडजस्ट करते हैं। अगर आप तीन कॉलम के विड्थ को एक साथ छोटा करना चाहते हैं तो हम इनको सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। ओके, नाउ आई एम सेलेक्टिंग द एंटायर, आई एम सेलेक्टिंग द डेटा टिल हियर एंड आई एम अप्लाइंग अ फ्रीज पेन। तो मैं व्यू में गया, व्यू में फ्रीज पेन पे क्लिक किया और फ्रीज पेन अप्लाई किया। तो जैसे ही हम फ्रीज पेन अप्लाई करेंगे, yes, double clicking on the border will also adjust, that is correct Rajat, thank you for that। तो डबल क्लिक करेंगे आप बॉर्डर पे जाके तो भी एडजस्ट हो जाएगा। और इसका एक शॉर्टकट की भी है बिकॉज आई एम मोर इनटू शॉर्टकट्स। तो Alt HOI अगर आप प्रेस करेंगे तो ये ऑटो विड्थ हो जाता है। ऑटो विड्थ का मतलब जिस कॉलम को जितनी जरूरत है वो उतनी जगह ले लेगा। और अगर आप यहाँ पे एच पे जाके डेटा सिलेक्ट करते हैं शीट को, तो सारी शीट एक साथ सिलेक्ट हो जाती है और फिर आप जो कॉलम का विड्थ देंगे वो हर कॉलम में उस सेम विड्थ से डेटा स्प्रेड हो जाएगा। राइट, सो अगेन आई एम टेलिंग ये डेटा हमको अगर स्क्वीज करना है तो हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि सेंट्रल टैक्स जो है यहाँ दिख नहीं रहा है। उसके लिए आप क्या करेंगे, होम टैब में जाके आप डेटा रैप टैक्स कर सकते हैं। तो जैसे हम रैप टैक्स करते हैं तो ये डेटा नीचे वाली रो में आ जाता है। ठीक है, अब हमने फ्रीज पेन लगाया था तो फ्रीज पेन से क्या होगा कि हम जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये रोज जो हेडिंग है वो विजिबल रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा मकसद है जीएसटी रिकंसिलिएशन का, Alt HOI, yes, this is the right key. Please write always ST. Okay, fine. So I will just type in the shortcut key. I'm just starting one software also that will show my keys which I'm pressing on the system. वो आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। चलिए,
तो ये डेटा हमारा था जो हमने बुक से लिया है, और एक डेटा हमारे पास है जो हमने जीएसटी पोर्टल से लिया है। अब जीएसटी पोर्टल से जब हम डेटा डाउनलोड करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपका जो इनवॉइस नंबर है ना, उसके साथ में आपको ऐसा कुछ एरर दिखता है। दिस इज द एरर मैसेज दैट यू आर गेटिंग। जो ब्लू कलर का लेफ्ट हैंड में आइकन आ रहा है, इट इज बेसिकली अ एरर, एन एरर। हाउ टू रिमूव दिस एरर? तो आप क्या करेंगे कि जहां पे भी ये इनवॉइस वाला नंबर है, आप सबको सेलेक्ट कर लेंगे एंड तक। यू विल जस्ट स्क्रॉल डाउन सेलेक्टिंग द कंट्रोल की दबा के आप नीचे तक आ जाएंगे। नीचे तक आने के बाद जहां पे ये एरर आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे एंड यू विल सिंपली से इट इज द नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट। ठीक है, तो एक्सेल में दो ही चीजें होती हैं, तो नंबर होता है या टेक्स्ट होता है। तो ये जो है नंबर है, लेकिन इसको एक्सेल टेक्स्ट मान रहा है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे नंबर में, ताकि जब हम रिकंसिलिएशन करेंगे इनवॉइस नंबर का, तो वो दोनों को नंबर ही पड़े, टेक्स्ट ना पड़े। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कन्वर्ट टू नंबर। तो जैसे ही आपने ये किया, अब आप देखेंगे कि जब वो आपके पास एरर्स आ रहे थे, वो सब रिमूव हो गए। लेकिन यहाँ ये करने से क्या हुआ कि हमारा जो डेटा था, यहाँ पे ऊपर वाले कुछ पार्ट रह गए हैं। तो अगेन आई एम डूइंग दैट। यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे अगेन, एंड दिस इज द फर्स्ट इनवॉइस। यू विल गो डाउन। देखिए अब मैं जो मैं स्क्रीन पे आपको कीज प्रेस कर रहा हूँ, आई थिंक इट इज विजिबल। इज इट विजिबल टू ऑल? इफ इट इज नॉट, देन आई विल शेयर माय स्क्रीन अगेन। So I'm just sharing my entire screen, and then you will be able to see everything. So yes, now share my entire screen. Now whatever keys I'm pressing on the keyboard, you will be able to see on the right hand side corner. तो आपको राइट हैंड साइड में कॉर्नर में शो होगा। अभी मैंने शिफ्ट की प्रेस कर रखी है और मैं डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो शिफ्ट और डाउन के साथ अब जब नीचे आते हैं, तो यू सी दैट द ऑल द डेटा गेट सिलेक्टेड। यहाँ पे ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे और आप कहेंगे कन्वर्ट टू नंबर। तो जो भी नंबर एज अ टेक्स्ट स्टोर्ड था, उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम कोई भी डेटा को एनालाइज करने से पहले, या इसमें वी लुकअप, एक्स लुकअप, या पिवट टेबल बनाने से पहले, इसको डेटा को क्लीन करेंगे। दैट इज द फर्स्ट टास्क दैट यू हैव टू डू व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद एनी डेटा। तो आपको सबसे पहले इस डेटा को क्लीन करना होगा। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी विड्थ कम कर देंगे, ताकि हमारे को दिख जाए कि कितने कॉलम्स हैं, और एक्चुअली जो डेटा है वो कितना बड़ा है, कितने कॉलम में स्प्रेड हो रखा है। राइट, सो आई विल जस्ट स्क्वीज दिस डेटा, और आप देखेंगे कि अब हमारे पास पहला कॉलम जीएसटी एंड सप्लायर है, दूसरा कॉलम उसका नाम है, तीसरा इनवॉइस नंबर है, चौथा इनवॉइस टाइप है। और इनवॉइस टाइप में अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे आर दिख रहा है। क्या कोई बता सकता है इस आर का क्या मतलब है? इनवॉइस टाइप में जो आर आ रहा है, व्हाट डज दैट मीन? ये आर का क्या मतलब होता है जीएसटी की 2A में? आर मीन्स रेगुलर, वेरी गुड। आर मीन्स रेगुलर, रजिस्टर्ड डीलर और रेगुलर डीलर। बट यहाँ पे सब में आ रहा है, तो इस कॉलम की इनफैक्ट जरूरत नहीं है हमें। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डिलीट द कॉलम। हम इस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉलम के हेड पे क्लिक करेंगे, और कंट्रोल माइनस इज द शॉर्टकट की। कंट्रोल माइनस से आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सो आई एम राइटिंग द शॉर्टकट की इन द chat box also. Control minus is the shortcut key for deleting a column, right? तो रजिस्टर्ड डीलर का कॉलम था, सब में आ रहा था, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। हमारी बुक्स में भी नहीं होता है, तो हम वही कॉलम रखते हैं जो बुक्स में है। उसके बाद आपके पास आ रहा है इनवॉइस और नोट डेट। ठीक है, यहाँ पे भी हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे, होम टैब में जाके हम कर देंगे रैप टैग्स। तो जैसे ही आप रैप टैग्स करेंगे, तो आप ये रैप टैग ऑलरेडी हो रखा था, सॉरी, और आप देखेंगे कि आप कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपके पास इनवॉइस वैल्यू रुपीज में, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई है, रिवर्स चार्ज यस और नो, ये ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद रेट कॉलम है, देन यू हैव टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड सेस। और फिर लास्ट में जो आता है हमारे पास कॉलम, वो है रिटर्न स्टेटस, दैट इज सबमिटेड। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो सेस है, अगर आपकी पार्टी में सेस एप्लीकेबल नहीं है, तो आप सेस वाले कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, और रिटर्न स्टेटस को भी डिलीट कर सकते हैं। सबमिटेड है तभी हमारे पास डेटा आ रहा है। तो बेसिकली हमारे पास वो डेटा बच गया जिससे हमारे को एनालिसिस करना है। जीएसटीएन, सप्लायर का नाम, इनवॉइस नंबर, और
invoice date, invoice value, reverse charge, yes or no, and then rate, taxable value, IGST, CGST, SGST. अब हम देखेंगे कि रिवर्स, अगर आपको देखना है कि इन कॉलम्स के अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। नाउ व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अप्लाई फिल्टर? फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं एक्सेल के अंदर? हाउ डू यू अप्लाई अ फिल्टर इन द एक्सेल? Alt DFF. Alt DFF, okay, that is one key, Alt DFF. दूसरा शॉर्टकट की Alt Shift, Control Shift और L, ठीक है, Control Shift L से भी शॉर्टकट फिल्टर लग जाता है, या Alt DFF से भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। हाँ करेक्ट सर, वेरी गुड। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। और जो शॉर्टकट की नहीं यूज में लेते हैं, है ना, वो लोग क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे और डेटा में ऑप्शन होता है यहाँ पे फिल्टर का, डेटा में, डेटा टैब में आपको फिल्टर दिखेगा, लेकिन यहाँ पे फिल्टर लग नहीं पा रहा है। कोई बता सकता है क्यों? ये जो डेटा है Protected sheet. कंट्रोल शिफ्ट एल भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मर्ज सेल, वेरी गुड, केजे ने जो बताया सही आंसर है, मर्ज। देखिए कभी भी डेटा जब मर्ज होता है, सेल मर्ज होते हैं, तो फिल्टर काम नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे, या तो उसको अनमर्ज कर दे सेल्स को। तो मर्ज, अनमर्ज करने के लिए हम होम टैब में जाएंगे और हम यहाँ से अनमर्ज सेल्स करते हैं। तो जैसे ही सेल अनमर्ज हो जाएंगे, ठीक है, डेटा थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, लेकिन ठीक है, हमें इन सब की जरूरत नहीं है, हमें नीचे वर्क करना है। लेकिन अब आप क्या लगा सकते हैं, अब आप आराम से फिल्टर लगा पाएंगे। तो ऑल डी, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाते हैं या ऑल डी एफ करते हैं, तो भी आपका फिल्टर अप्लाई हो जाता है। बट अभी भी मैं फिल्टर अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, अभी भी आप देखेंगे तो फिल्टर अप्लाई नहीं हुआ, इनफैक्ट ये डिसेबल्ड है, ठीक है सर आपकी शीट मल्टी शीट सॉरी, सिलेक्टेड है। राइट, करेक्ट करेक्ट, मैं अनग्रुप कर देता हूँ, वो गलती से मल्टी शीट सिलेक्ट हो गई। थैंक यू जिसने भी ये आंसर दिया है, ये बताया मुझे। अब हम कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ फिल्टर लगा दें और ये फिल्टर लग गया। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि रिवर्स चार्ज में क्या क्या आंसर आ रहा है, तो आप देखेंगे नो ही आ रहा है, मतलब इन ऑल द शीट्स समवन इज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो if you can unmute yourself, और आई एम म्यूटिंग एवरीवन, ओके, थैंक यू। नाउ आप देखेंगे रिवर्स चार्ज में सिर्फ नो ही है, मतलब कोई रिवर्स चार्ज वाली एंट्री है नहीं, तो इस कॉलम को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब चैलेंज ये था कि सबसे पहले हमारे पास जो हर एक के बाद टोटल आ रहा है वो हमें रिमूव करना है, क्योंकि आई वांट ओनली सिंगल एंट्रीज, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जो फिल्टर हमने लगाया है इनवॉइस नंबर पे, आप ये जो फिल्टर लगा है, ये पूरे फिल्टर पूरे डेटा पे नहीं लगा, तो कंट्रोल शिफ्ट एल वापस दबा रहा हूँ और यहाँ से मैंने जो फ्री स्पिन लगाया था मैं उसको एक बार हटा रहा हूँ, ठीक है। अब हम पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की के साथ अगर आप जाते हैं तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर यहाँ पे गैप्स हैं, मतलब कुछ रोज ब्लैंक है, इसलिए हमारे को शिफ्ट की और डाउन एरो की के साथ इस डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे कंट्रोल ए भी सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेता है, या आप पेज डाउन के साथ आएंगे तो आप जल्दी ट्रैवल कर पाएंगे डेटा में, अगर डेटा ज्यादा है तो। लेकिन हम एंड तक पहुंच गए हैं और हमने अब सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल शिफ्ट एल मैंने प्रेस किया है और आप देखेंगे क्या हमारे पास फिर से फिल्टर लग गए हैं। डिलीट ब्लैंक रो फर्स्ट टू इज, यस, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ब्लैंक रोज डिलीट करता हूँ, तो उसके लिए भी फिल्टर लगाने की जरूरत थी, फिल्टर लगाया हमने। अब फिल्टर पे गए और सिलेक्ट ऑल को मैं हटा देता हूँ और सिर्फ ब्लैंक रो सिलेक्ट करूंगा, आई एम सिलेक्टिंग ओनली द ब्लैंक रोज। तो आप देखेंगे कि सिर्फ जितनी भी ब्लैंक रोज थी वो सब सिलेक्ट हो गई हैं, और हम यहाँ से इन सारी ब्लैंक्स को, एक रो को एक साथ डिलीट करेंगे। एक साथ डिलीट करने के लिए आपको क्या दबाना है, कंट्रोल माइनस। Control minus is again the shortcut key to delete all the blank rows, to any row, to delete any row, ठीक है। अब आप select all करेंगे, अब आप देखेंगे कोई भी blank row नहीं रही है, सिर्फ डेटा है हमारे पास। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि टोटल आ रहा है, तो अब आप इनवॉइस नंबर पे जाएंगे और यहाँ पे आप select all को अनचेक करेंगे और लास्ट में आप टेक्स्ट फिल्टर में जाएंगे और कंटेन्स में लिख देंगे टोटल, ठीक है। तो हमने क्या करा, हम टोटल पे गए और हमने टोटल लिख दिया। अब आप देखेंगे कि जहां पे भी आपके पास टोटल वाली रोज आ रहे थे वो सारे रो फिल्टर में आ गए, मतलब मेरे पास डेटा में वो रोज दिख रहा है जहां पे टोटल एक्स्ट्रा आ रहा था, मतलब ये सब एक्स्ट्रा रोज हैं, डुप्लीकेट रोज हैं जिसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ।
वैसे हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट का भी ऑप्शन होता है, लेकिन मैं सिंपल वे में चीजें समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि सबकी एक्सेल लिटरेसी भी अलग अलग रेट की है, सबको एक्सेल का प्रोफिशिएंसी अलग अलग लेवल की है, तो वी आर ट्राइंग टू शो यू सम बेसिक थिंग्स, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बता रहा हूँ, सिंपल चीजें जो है एक्सेल में वही मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सो यस, now we can see that the data is now almost sorted out, ठीक है, कंट्रोल एच करके हम होम की पे जा सकते हैं। तो मैं वापस से शीट के टॉप पे आ जाता हूँ और आप देखेंगे कि हमने सारे जो डुप्लीकेट रोज थी जहाँ पे टोटल आ रहा था वो रिमूव कर दिया है और ब्लैंक रोज भी रिमूव हो गए। तो अब ये डेटा मेरा एक सॉर्टेड डेटा है जिसमें कि हमारे को इस रो की भी जरूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सप्लायर का जीएसटी है, सप्लायर नेम है, इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है, उसके बाद इनवॉइस वैल्यू है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, रेट है, टैक्सेबल वैल्यू है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई की भी वैसे देखा जाए तो जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप सीजीएसटी, एसजीएसटी देखना चाहते हैं तो वो अपन जीएसटी से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी जो है अलग अलग स्टेट्स के डेटा है हमारे पास, डमी डेटा लिया है मैंने रिकंसिलिएशन के लिए समझाने के लिए, और इस कॉलम को मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई सेम आ रही है। रिलेटेड टोटल प्लीज अगेन वंस अगेन। ओके, टोटल फिर से बतानी है, तो मैं देख लेता हूँ मेरे पास डेटा कॉपी तो नहीं किया होगा। तो देखिए हमारे को डुप्लीकेट रोज डिलीट करनी थी। डुप्लीकेट रोज डिलीट करने के लिए मैं एक रो यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। एक क्वेरी आई है कि वापस से बताना, तो एक काम करते हैं, ये रो मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो मैंने कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी करा, कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पर एक टोटल और आ रहा था, ये टोटल, और यहाँ पे भी एक मैं टोटल लगा देता हूँ, यहाँ पे एक टोटल आ गया, ठीक है। और मान लेते हैं कि दो रो आपस में रिपीट हो रही है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि रो को डिलीट करने के लिए आप पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लोगे, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे, उससे शॉर्टकट लग जाएगा, मतलब फिल्टर लग जाएगा, सॉरी। फिल्टर की जब आप लगा देंगे तो फिर आपको क्या करना है, आपको इनवॉइस नंबर पे आना है, सिलेक्ट ऑल को सिलेक्ट हटाना है, अनचेक करना है, और आप टेक्स्ट फिल्टर में जाएंगे, ठीक है। यहां से आप यहाँ पे लिख देंगे टोटल, ठीक है। तो टोटल लिखने से भी आपको वो रोज दिख जाएगी, यहाँ पे टोटल आ रहा है। ये हमने कॉपी करी थी एक्स्ट्रा रोज, इसको हम डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल माइनस के थ्रू आप डिलीट कर सकते हैं। अब फिल्टर हटा देते हैं, अब हमारे पास सॉर्टेड डेटा है, ठीक है। नाउ दिस डेटा इज सॉर्टेड। एक सजेशन मैं आपको और दूंगा कि जब भी आप डेटा पे काम कर रहे हैं, फ्री स्पेन हमने हटाया था इसलिए हमारी टॉप रो गायब हो रही है। मैं ये भी हटा देता हूँ क्योंकि ये किसी काम का है नहीं, जीएसटी की वेबसाइट। ये जो आइकन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको भी अभी डिलीट कर देते हैं। राइट, नाउ दिस डेटा लुक्स परफेक्ट। कंट्रोल ए आप प्रेस करेंगे, उससे सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल ए से। उसके बाद आप प्रेस करेंगे कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से क्या होगा, टेबल बन जाएगी, ठीक है। हमारा जो डेटा है वो एक टैबुलर फॉर्म में आ जाएगा। तो जब हम टैबुलर फॉर्म में डेटा को डालते हैं तो ऑटोमेटिकली फिल्टर अप्लाई हो जाते हैं, और ये बैंडेड रोज दिख रही है। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप ये रोज यहाँ से हटा सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं ऊपर से टेबल डिजाइन में से। तो ये डेटा मेरा ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया। अब मैं इसको अगर फिल्टर करना चाहूँ रेट वाइज, तो मैं रेट वाइज भी फिल्टर कर सकता हूँ। तो हमारे पास 3% वाला आइटम भी है, 5 वाला भी है, और नीचे चलेंगे तो आप देखेंगे 12 भी है, 18 भी है, और 28 भी है, ठीक है। तो अलग अलग रेट्स के आइटम्स हैं। यहाँ पे हमारे पास जो डेटा था, ये मैंने जीएसटी पोर्टल का डेटा अभी ठीक किया है, और इसके बाद हम आते हैं अब अपने बुक्स पे। बुक्स का जो डेटा है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम रिकंसिलिएशन करेंगे, पहले हम इनवॉइस लेवल का रिकंसिलिएशन करेंगे कि कौन सा बिल पोर्टल पे है जो कि बुक्स में नहीं है, या बुक्स में और पोर्टल पे नहीं है। उसके लिए एक फॉर्मूला काम में लेंगे, एक्स लुकअप का। एक्स लुकअप तभी काम करेगा जब आपने 2016, 19 या 365 अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हैं। अगर आप एक्सेल 2007, 10 या 13 यूज कर रहे हैं तो एक्स लुकअप नहीं चलेगा। उसके लिए फिर मैं आपको वी लुकअप बता दूंगा या पिवट टेबल बता दूंगा, ठीक है। Now we have the data as per books and we have the data as per portal.
So now this is the data as per portal which I have cleaned. Now I am going to data as per books. बुक्स पे भी हमारे सेम कैटेगरी का डेटा रखा है, लाइक जीएसटी ऑफ पोर्टल, नेम ऑफ सप्लायर, जीएसटी ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर और क्रेडिट नोट नंबर। इसको मैं रेफटेक्स कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इनवॉइस डेट, देन यू हैव टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। सेस हमारे पास नील है, तो आई विल डिलीट दिस कॉलम, मैं इस कॉलम को नहीं रखूंगा, ठीक है। तो ये दो डेटा आपके पास है। ये डेटा को ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सॉर्टेड है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ग्रीन एरर्स आ रहे हैं, तो दोज हु हैव जॉइंड नाउ, इट विल बी अ रिवीजन फॉर देम, एंड दोज हु आर लिसनिंग अर्लियर, उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। जो लोग नए जुड़ रहे हैं और वो लोग अब देख सकते हैं कि जब भी ऐसा एरर आता है, ये जब भी आता है जब आप कोई पोर्टल से डेटा डाउनलोड करते हैं या हम बैंक के ऑडिट पे जाते हैं, वहां से कोई डेटा डाउनलोड करते हैं, तो ये जनरली एरर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको रिमूव करने का एक ही तरीका है कि जहाँ पे एरर आ रहा है वहां से आप डेटा सिलेक्ट करना चालू करें। तो ये एरर जो आ रहा है यहाँ से आ रहा है, इससे मैं सिलेक्ट करूंगा डेटा टिल द लास्ट रो, आई विल गो टिल द लास्ट रो एंड देन आई विल क्लिक हियर, मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड आई विल से कन्वर्ट टू नंबर। So basically these were number stored as text, और ये आप देखेंगे आप सारा नंबर में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब करना क्या है, दो चीजें करनी है हमारे को। एक तो ये जो डेटा है पोर्टल का और बुक्स का, आप इन दोनों डेटा को एक साथ कंबाइन कर दोगे, ठीक है। तो मैंने ये टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी कर रखा था। तो आप क्या करेंगे, बुक्स के आगे एक कॉलम इंसर्ट करेंगे रिमार्क्स का, ठीक है, और उस रिमार्क्स में आप लिख देंगे बुक्स, ताकि आपको पता पड़ जाए कि ये वाला जो डेटा है ये बुक्स से आ रहा है, ठीक है। सो यू विल रिमूव, यू विल पुट दिस रिमार्क बुक्स ऑन द डेटा टिल द एंड। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ लास्ट में मैं बुक्स लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और आप अप एरो दबाएंगे तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल डी दबाना है। कंट्रोल डी क्या करता है, सेल को रिपीट कर देता है, ठीक है। आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट, मतलब आई डोंट नो हाउ यू आर फाइंडिंग इट। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप बता सकते हैं, स्लो लग रहा है तो भी आप बता सकते हैं। इफ यू रिप्लाई इन द चैट बॉक्स आई विल गिव अ फीडबैक, आई विल गेट अ फीडबैक अबाउट हाउ इट इज गोइंग। इफ इट इज गोइंग फाइन यू कैन राइट फाइन। तो हम 1 मिनट का 10 सेकंड का पॉज ले रहे हैं और आपका फीडबैक मुझे चाहिए कि फास्ट तो नहीं लग रहा है, फाइन, ओके फाइन। सो पीपल आर सेइंग इट इज फाइन, ओके फाइन, ग्रेट, फाइन। So far what we have done is we have just sorted out some data into the sheet. Okay. I'm very afraid of adding people with who are not having their names, because okay, fine. Dolly, you are there. I'm making you admin. Please. I'm here. Of the people. And if you feel like there is someone who should not be there in the meeting, you can just remove them. I am removing one person which I am finding absurd. So just hold on, people. And I will not add any more people now. So yes. Hey, I'm sorry to interrupt, but how was everyone's day? Okay, so fine. Dolly, please keep track of the people in the meeting. Okay. So now what we are doing is we have both the data. हमारे पास दोनों तरफ से डेटा है जो हमने फिल्टर कर लिया है। एक तो जीएसटी का डेटा फिल्टर कर लिया है हमने, और दूसरा हमने क्या डेटा फिल्टर किया है, हमने बुक्स का डेटा फिल्टर कर लिया, ठीक है। बुक्स में हमने लास्ट में कॉलम ऐड करा है जिसका नाम मैंने रखा है रिमार्क्स। इसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ, आपको पता पड़ जाएगा कि डेटा हमारा टैली से इंपोर्टेंट नहीं है, सॉफ्टवेयर से इंपोर्टेंट नहीं है, हमने अलग से ऐड किया है। सिमिलरली you can put a remarks column in the GST data also, और यहाँ पे हम डालेंगे remarks and यहाँ पे मैं लिख दूंगा, इसको भी मैं येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ so that people come to know कि we have added this column, it was not there in the
actual data, and I will say GSTN. Okay, so at one place we have data from books, at one place we have data from GSTN. Now I'm going up and I'm seeing Control D. ठीक है, Control D आप करेंगे तो Control D करने के बाद you will be able to see this data. ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जब हम पिवट टेबल बनाएंगे तो पिवट टेबल में हमारे को दोनों डेटा कंबाइन चाहिए. तो आई वांट द डेटा फ्रॉम द बुक्स एंड GSTN टुगेदर. ठीक है, तो ये मैंने रिमार्क्स कॉलम ऐड करे हैं. उसके बाद मैंने डेटा कंबाइन कर दिया था. नाउ डेटा कंबाइन करने के लिए क्या होगा, आपको दोनों को कॉपी पेस्ट करना होगा, लेकिन देयर इज वन मोर वे थ्रू व्हिच यू कैन मर्ज द डेटा, एंड दैट इज कॉल्ड एज पावर क्वेरी. ठीक है, पावर क्वेरी. How many of you in the meeting know about Power Query? Can we have a yes if you know about Power Query? जिन लोगों को भी Power Query के बारे में पता है वो yes लिख देंगे chat box में. There are 25 participants in the meeting today. No, I don't know. Okay. Now this is a very powerful tool. Yes, this is a very powerful tool. So I will take 1 or 2 minutes to explain what is Power Query. And ये आप अपने day to day practice में या day to day work में भी काम में ले सकते हैं. Okay. So allow me some time to explain you Power Query. तो यहाँ पे मैं एक शीट नई इंसर्ट कर रहा हूँ, शीट नंबर 2. इसको हम नाम दे देते हैं Power Query का. And what you can do with Power Query is we are going to merge the data of 2 sheets into 1 sheet. ठीक है, ये मैं मैनुअली भी कर सकता था कॉपी पेस्ट करके, लेकिन मैं आपको इस फंक्शन के थ्रू सिखाना चाह रहा हूँ कि हाउ वी कैन यूज एक्चुअली द Power Query, and it will work only if you have the advanced वर्जन ऑफ एक्सेल. ठीक है, तो सभी से अगेन इट इज अ रिक्वेस्ट कि इफ यू आर प्रोफेशनल एंड यू आर डूइंग प्रैक्टिस और आप कंपनी में वर्क भी करते हैं, तो भी लेटेस्ट एक्सेल अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ले लेंगे 365, तो यू विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज द टूल्स आर दैट आर अवेलेबल आर वेरी एडवांस्ड. तो आपको करना क्या है, यू हैव टू गो टू डेटा, और डेटा में आपको 2 डेटा मर्ज करने एक साथ, 2 शीट से डेटा आपको मर्ज करना है. ठीक है, so there are some tools here. यहाँ पे आपको get data दिखता है. get data में आपके पास है from file. ठीक है, and you will have one data from table. Okay, so here you have from other sources and table or range. So basically there are 2 tables. Yeah, Power Query is not available in the pirated version, only in the purchases. Yes, exactly. So you have to purchase Excel for that, right? तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो बनता है. तो फॉर्म सोर्सेज में आप जाएंगे, फॉर्म टेबल और रेंज. ठीक है, नाउ आप टेबल को नेम भी दे सकते हैं अपनी, ठीक है, या रेंज भी दे सकते हैं. अभी थोड़ा सा पावर क्वेरी जब हम यूज करते हैं ना, तो क्या होता है कि इट बिकम्स थोड़ा सा हेवी. इफ द डेटा इज हेवी तो थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर डेटा हैवी नहीं है तो इजीली हो जाएगा. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज कि ये जो 10 there are 10 columns, right? तो यहाँ पे 10 columns हैं, and I will check the column number here also. There are only 7 columns in the books. तो GSTN में कुछ extra columns है, तो we have to identify कौन से columns extra हैं. तो एक मिनट, sorry, I have not selected the entire column. So one is GSTN and the last, till last, if I see, there are 8 columns in the books and there are 10 columns. So GSTN supplier name is there, invoice number, invoice date. So here also invoice number, invoice date, name of supplier, and GSTN supplier. 4 columns are exactly the same. Then you have invoice value also, which is not there in the books and rate column. ये दो चीजें हमारे पास बुक्स में नहीं है. टैक्सेबल वैल्यू है ये है, और लास्ट में हमारे पास जो चीज नहीं है वो ये, एक तो रेट नहीं है और एक हमारे पास इनवॉइस वैल्यू नहीं है. ठीक है, इनवॉइस वैल्यू तो हम क्रिएट कर सकते हैं, रेट हमारे पास नहीं है. इन दोनों कॉलम को मैं यहाँ से शिफ्ट करना चाहता हूँ बिकॉज दे आर नॉट सेम एज दैट वी हैव इन द बुक्स. तो अभी देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कोई कॉलम शिफ्ट करना है, ये हम लास्ट में ले जाना चाहते हैं, तो आप इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लें, इसके एज पे जाएंगे और अब यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं. मेनी पीपल डोंट नो दिस ट्रिक, बट या यू कैन. और यहाँ पे डेटा है, यहाँ हमें नहीं लिखना. एंड यस, नाउ आई विल मूव इट अगेन एंड आई विल मूव इट टू द लास्ट. और आप देखेंगे
कि यहाँ से ये डेटा खाली हो गया और ये आखिरी में चला गया. I can read these two columns now easily. Okay. So now we have the same data like GST and supplier invoice number, invoice date, taxable value, IGST, CGST, SGST. और यहाँ पे भी ये सेम है, IGST, CGST, SGST, taxable value. तो what I was saying is कि पावर क्वेरी से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लोगों के पास पावर क्वेरी नहीं है, मतलब एक्सेल 365 नहीं है, हम बेसिकली क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट ही कर लेंगे. ठीक है, बेसिक. तो यहाँ पे मैंने डेटा कॉपी कर लिया बुक से, और हमारे पास जो लास्ट कॉलम था बुक्स में रिमार्क्स का, यहाँ मैंने एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट कर दिया, इसकी अभी जरूरत नहीं है. आप इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम इसको पेस्ट कर देते हैं. ये बुक्स का डेटा आ गया. और सिमिलरली व्हाट यू हैव टू डू इज, ये आप एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लेंगे यहाँ तक, कंट्रोल सी एंड पावर क्वेरी वाली शीट की, और यहाँ पे हम लाएंगे कंट्रोल बी. एट. ओके, 1 2 3 8. Okay, I am taking that remarks column also. So I will select this entire table and I will say copy to the Power Query sheet and we will paste it over here. ठीक है, अब देखिए आपने पेस्ट कर दिया है. अब आप ये मैच कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास डेटा था, जीएसटी एंड जीएसटी की जगह पे आ गया, सप्लायर का नाम आ गया, इनवॉइस नंबर आ गया, इनवॉइस का डेट आ गया है, वैल्यू आ गई है, टैक्सेबल वैल्यू आ गई, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी आ गया. राइट, यू कैन डिलीट दिस रो नाउ. एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आखिरी जो कॉलम था हमारा रिमार्क्स वाला, जीएसटी वाला, इसको भी कॉपी कर सकते हैं. तो आई विल जस्ट से कॉपी and I will just say paste. So now this is a combined sheet. I will rename it as combined data. First, I am showing you how to create a pivot table. Then I will show you how to use a XLOOKUP or a VLOOKUP. ठीक है, तो पहले हम combined data पे जाएंगे. combined data पे हमारे पास जो fields है वो common है. सप्लायर का नाम, नंबर, नेम, जीएसटी नंबर, invoice number, invoice date, taxable value, IGST, CGST, SGST. If you want to find out the invoice value, what you can do is you can simply put a formula. तो मैं यहाँ पे invoice value भी लिख देता हूँ क्योंकि कई बार invoice value में भी गलती हो जाती है फीडिंग में. तो आप taxable value यहाँ पे sum का फॉर्मूला लगा देंगे, sum, and you will select these 4 columns and you will get a invoice value. यहाँ आके आप अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो इट विल पेस्ट द फॉर्मूला टिल द एंड. आपको एंड तक आपको ये टोटल मिल जाएगा. ठीक है, सो यू कैन सी दैट दिस टोटल इज देयर, बट अगेन दिस एरर इज कमिंग, सो इट इज सेइंग वी फॉर्मूला ओमिट्स एडजस्टेंट्स एट ओके फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, इग्नोर एरर. ठीक है, अब हम इसको इग्नोर कराना चाहते हैं. Okay, or you can just ignore this sign also for the time being. ठीक है, इग्नोर करेंगे तो ये इग्नोर हो जाएगा. एक्सेल में यही चीज अच्छी है कि आप इसको इग्नोर करोगे तो बुरा नहीं मानेगा. हम लोगों को इग्नोर कर दे तो हमको बुरा लगता है, बट एक्सेल में अगर आप किसी चीज को इग्नोर करोगे तो इट विल नॉट फील बैड. इग्नोर एरर. ओके, एनीवेज, तो because there is GST and so appearing error there, there is IGST. Okay, yes, fine. So there is no IGST, so it is saying what you can do is you can replace the dash with a 0 also. ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे 0 लिख देते हैं तो फिर ये I think error नहीं आएगा. But anyways, we don't want to do all this stuff. ये 0 ही है already. ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं, इस error को आप ignore कर सकते हैं and it will give you the result, but that is not a problem. It has given the result. और ठीक दे रहा है, टोटल जो आ रहा है सही आ रहा है. Now what we are going to do is we are going to understand how to create a pivot table. ठीक है, now how many people already know how to create a pivot?
how to place dash by 0 in one formula, how to replace dash by 0. okay, आपको डैश को रिप्लेस करना है 0 से, है ना? तो इस कॉलम में डैश है, हम इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं 0 से, तो हम क्या करेंगे, आप नंबर पे जाएंगे बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है? तो बेसिकली इट वाज कस्टम, ये मैं कंट्रोल Z से दिखा देता हूँ। तो पहले यहाँ पे जब ये डैश आ रहे थे, तो बेसिकली आप फॉर्मूला बार में देखिए तो 0 ही लिखा हुआ है, लेकिन वो दिख रहा है डैश, क्योंकि यहाँ पे आपको कस्टम दिख रहा है। आप इस कॉलम को सिलेक्ट करें और इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही आप नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और ये 0 अगर आ जाएगा तो यहाँ से ये एरर भी हट जाएगा, ये एरर भी हट चुका है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। So now what we have to do is, again I will convert this into a table now. So Control A, Control T, and now it is a table. ठीक है, इसका थोड़ा सा कलर ठीक कर देते हैं, ग्रे कलर आई एम नॉट लाइकिंग इट टू मच, तो इसको हम कर देते हैं ब्लू और इसको कर देते हैं हम व्हाइट, करेक्ट। तो ये हमारे पास एक टेबल बन गई है, और ये बैंडेड रोज अगर नहीं पसंद है आपको, तो आप इस बैंडेड रोज को हटा सकते हैं, टेबल डिजाइन में जाएंगे, बैंडेड रोज हटा देंगे। Now we are going to see how can we create a pivot table. ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा था कितने लोगों को ऑलरेडी पिवट बनाना आता है? If you know how to create a pivot table, you can write a yes in the chat box. Yes, 1, 2, okay, 3, 4, 5. Very good. Many people know how to create a pivot. Okay, great, great, great. So should I do it still? There are people who don't know. Okay, fine. So we will do it again. ठीक है, एक बार अगर आप लोग को आता भी है तो we will do it. Yes, we will do it. Okay. Now अब हम क्या करेंगे सर? We are going to create a pivot table. So जिन लोग को नहीं आता उन लोग के लिए, और जिन लोग को आता है उनका रिवीजन हो जाए। So you will go to home tab. Insert tab में मिलता है हमारे को pivot. Those who know, insert tab में हम जाएंगे and first option that you see towards the left is the pivot table. और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे. When you click on it, you will see that एक पूछ रहा है select a table or range. मतलब आप किस टेबल से पिवट बनाना चाहते हैं वो आपसे पूछ रहा है। तो हमारा पूरा डेटा हमें सिलेक्ट कर लेना है, एंड इफ यू सी दैट द एंटायर डेटा इज नाउ सिलेक्टेड, एंटायर डेटा इज सिलेक्टेड। सो यहाँ पे आप देखेंगे ये डेटा पूरा और पूरा सिलेक्ट हो चुका है एंड तक, ठीक है, और यहाँ तक ये पूरा डेटा सिलेक्टेड है, कॉलम नंबर 219 तक। सो ए से लेके जे तक सारे कॉलम सिलेक्टेड हैं। अब हमें पिवट इसी शीट में बनानी है, नई शीट में बनानी है? टेल मी, न्यू शीट और एग्जिस्टिंग शीट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। न्यू शीट और एग्जिस्टिंग शीट कहां बनाए पिवट? न्यू और एग्जिस्टिंग? न्यू, yes, because there is no space in this existing sheet, so we will definitely make it in the new sheet only, so I will say new. ठीक है, न्यू शीट पे हमने बना ली है, एग्जिस्टिंग, ओके, नो प्रॉब्लम सर, न्यू में बना लेते हैं, ठीक है। अब न्यू शीट में हम अच्छे से बना पाएंगे क्योंकि वी विल गेट स्पेस। तो जब भी आप पिवट बनाते हैं, जो लोग नए हैं और पहली बार सीख रहे हैं पिवट बनाना, तो इट इज अ वेरी वंडरफुल टूल ऑफ एक्सेल, जिसपे आप डेटा को समराइज कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज अ लेआउट ऑफ द पिवट जो आपको यहाँ दिखता है, और ये टेबल फील्ड्स होती हैं जिसके थ्रू हम पिवट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हम आज करने वाले हैं वो ये है कि कंबाइंड डेटा से पिवट बनाएंगे। और पिवट का स्ट्रक्चर कैसे होता है? देयर आर फोर थिंग्स इन द पिवट, वन इज फिल्टर, वन इज कॉलम, वन इज रो एंड वन इज वैल्यूज। तो जो आप रो में डालेंगे वो आपको देखो साइमल्टेनियसली आपको पीछे की तरफ दिखता रहेगा। ये जो स्पेस मैंने यहाँ पे करी है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक चीजें दिखती रहेंगी। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, जो लोगों ने बोला कि आपको पिवट आता है, व्हाट शुड आई पुट इन द रो? व्हाट शुड आई पुट इन द रो? व्हाट शुड माय बेस ऑफ क्रिएटिंग अ रिकंसिलिएशन? बताइए, हम रो में क्या चीज डालेंगे? GSTN, वेरी गुड, पीपल आर सेइंग GSTN, करेक्ट, क्योंकि GSTN से हमें पता पड़ेगा कि किसका, और पीपल आर सेइंग इनवॉइस आल्सो, फाइन, करेक्ट। तो हम एक काम करते हैं, अभी फिलहाल मैं GSTN से शुरुआत करता हूं, तो आई विल पुट द GSTN ऑफ सप्लायर। आप सीधा सा उसको सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके नीचे छोड़ देंगे। जैसे ही आप नीचे छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका डेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपने पूरे साल का भी डेटा क्यों नहीं रख रखा, आपकी जो यूनिक GSTN नंबर है वो सारे आ जाएंगे, ठीक है।
अब जीएसटी नंबर से नाम याद नहीं रहता पार्टी, तो हम उसके साथ में क्या रखेंगे, नेम ऑफ सप्लायर। सो आप नेम ऑफ सप्लायर पर टिक कर दीजिए, ठीक है, यू विल जस्ट पुट अ टिक इन द नेम ऑफ सप्लायर, जीएसटीएन और इनवॉइस। ओके, हाँ, इनवॉइस में बता रहा हूँ क्यों नहीं लिया हमने जीएसटीएन क्यों लिया, अभी आई विल जस्ट लेट यू नो, आपको पता पड़ेगा थोड़ी सी देर में। उसके साथ में मैंने क्या रख दिया, नेम ऑफ सप्लायर जीएसटीएन, और उसके अंदर रो में आ रहा है नेम ऑफ सप्लायर, ठीक है। अभी हमारे पास तीन जगह खाली है, इसका फिल्टर खाली है, कॉलम खाली है और वैल्यू खाली है। वैल्यू में क्या डालेंगे, टेल मी, वैल्यू में क्या डालेंगे, वैल्यूज में क्या डालेंगे, टैक्सेबल वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू। ओके, सो आई विल पुट ऑल द वैल्यूज देयर, जो भी मेरे पास नंबर में है टोटल, सीजीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू, ओके, एसजीएसटी, taxable and tax rate, okay, let us put everything on the value। तो मैं taxable value मैंने select कर लिया, ऑटोमेटिकली उधर चला गया। फिर मैंने इंटीग्रेटेड टैक्स ले लिया, सीजीएसटी ले लिया, एसजीएसटी ले लिया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए सर कि ये जो आ रहा है डेटा, ये बुक्स का है या पोर्टल का है, जो हमने पिवट में ये डेटा सेलेक्ट किया है, ये बुक से आ रहा है या पोर्टल से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये डेटा? Need to put filter, correct, need to put filter, both is the right answer, both, all correct, combined sheet। So we are creating this pivot from a combined sheet, तो डेटा दोनों जगह से आ रहा है, ठीक है, तो दोनों जगह से आ रहा है तभी तो रिकंसिलिएशन होगा, करेक्ट। बट आपको कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा डेटा कहाँ से आया है? अभी मैं एक काम करता हूँ, उसको कोलैप्स कर देता हूँ। दिस इज द पिवट व्हिच आई क्रिएटेड, आई विल डू सम चेंजेस टू इट, आई विल जस्ट से कोलैप्स ऑल, ये मैंने कोलैप्स एंटायर फील्ड कर, कोलैप्स करने से क्या हुआ, सिर्फ जीएसटी नंबर दिख रहा है, सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, मतलब इस पार्टी से हमने टोटल माल कितना खरीदा है, उसमें कितना आईजीएसटी दिया, सीजीएसटी एसजीएसटी जीरो है क्योंकि आईजीएसटी है, तो जहां पे भी आईजीएसटी है वहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी जीरो रहेगा, जहां पे भी सीजीएसटी और एसजीएसटी वहां पे आईजीएसटी जीरो रहेगा, है ना, ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। अब लेकिन सर रिकंसिलिएशन कहाँ हुआ, ये रिकंसिलिएशन कहाँ हुआ, ये तो एक जीएसटीएन के अंदर आपने ये पार्टी का दे दिया, अगर मान लो इस पार्टी से ज्यादा सेल्स है तो इस मतलब जो भी बिल है हमारे पास वो सब आ जाएंगे। अभी हमने इनवॉइस नंबर को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इनवॉइस नंबर को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। अब एक काम करते हैं, मैं इसमें रिमार्क्स कॉलम मैंने ऐड किया था, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे पास डेटा बुक से आ रहा है या डेटा पोर्टल से आ रहा है, तो इसको मैं डाल देता हूँ कॉलम में। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने ये डेटा डाल दिया है कॉलम में। अब क्या होगा, अब देखिएगा क्या होगा, हमारे पास डेटा आ रहा है बुक्स का यहां तक, दिस इज द डेटा फ्रॉम द बुक्स, दिस इज द डेटा फ्रॉम द बुक्स एंड दिस इज द डेटा फ्रॉम द पोर्टल। उसी के बाजू में, उसी के पास में डेटा हमारे पास कहां से आ रहा है, पोर्टल से आ रहा है। एंड देयर आर सम ब्लैंक सेल्स, ये ब्लैंक क्यों आ गए हैं, ये आना नहीं चाहिए था, लेकिन हमने एक गलती से एक कॉलम एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर लिया रो, तो उसको हम डिलीट कर पाएंगे क्या? पिवट में कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते हो आप, लेकिन हाइड करने का ऑप्शन है हमारे पास, करेक्ट, ठीक है। तो ये डेटा आ गया हमारे पास बुक्स का, ये डेटा आ गया जीएसटीएन का, लेकिन इसके बाद जो आ रहा है उसकी शायद जरूरत नहीं है, वो टोटल है, इन दोनों का टोटल है, तो टोटल का क्या करना है, ठीक है, तो इस टोटल को टैक्सेबल वैल्यू, ये टोटल को हम हटा देते हैं, इन टोटल को भी हम हाइड कर देते हैं। एवरीवन इज फाइन टिल हियर, एवरीवन इज परफेक्ट टिल हियर, सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू, इज इट ऑल फाइन टिल नाउ? Yes, yes, yes. Is it possible to write? What do you want to write now? Step one. See, I will be sharing the recording. It will be there on my YouTube, so you can see it again. Because there is a paucity of time and people have joined from different places. So अभी I will not. Yes, collapse. अभी हम क्या करते हैं? I will just uncollapse this. ठीक है? मैं इसको I need to remove a person.
joined in. Okay. Done. This is a limitation of online meeting that you don't have a control of who is joining it, but is still yes. Thank you. So जब हम ग्रैंड टोटल को हाइट की जगह रिमूव भी कर सकते हैं, ओके सर, हम ग्रैंड टोटल को हाँ हाइट की जगह रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, सो रिमूव करने का ऑप्शन भी हमारे पास है, ठीक है, तो वो भी मैं करके बता देता हूँ। तो अनहाइड कर देते हैं और रिमूव करने का ऑप्शन जो आप बता रहे हैं ग्रैंड टोटल को, हाँ वो हम कर सकते हैं, राइट। तो मैं उस पर आता हूँ, बट अभी फिलहाल मैं हाइड करना चाह रहा था इसको, मैं हाइड ही कर देता हूँ एक बार। और रिमूव करने का जो ऑप्शन है वो कहाँ से है, आप शो फील्ड पे जाएंगे, यहाँ पे ये सम का ऑप्शन आ रहा है। अभी हम एक चीज और करना चाह रहे थे, मैंने ये बुक्स और इसको कर दिया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अगर इसको मैं वैल्यूज ऊपर कर देता हूँ और रिमार्क्स नीचे कर देता हूँ तो क्या होगा, तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। नाउ यू विल सी column by column comparison of the data from the portal and the books. Is it not worth it now? मतलब अब आपका काम आसान हो जाएगा। और देखिए ब्लैंक जो कॉलम था ना, वो इसलिए था कि यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशंस कर पाए, लेकिन अफसोस कि पिवट के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मतलब पिवट जो बन जाता है उसके आप एक्स्ट्रा अंदर कॉलम या रो इंसर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इनवॉइस नंबर की कमी लग रही थी वहां पे, राइट। लोगों ने कहा था इनवॉइस नंबर भी डालो, तो अब मैं इनवॉइस नंबर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो आई विल से इनवॉइस नंबर। अब इस इनवॉइस नंबर को हमने कहाँ प्लेस किया है, रो में। अगर मैं इसको कॉलम में प्लेस कर दूं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। इसको रो में ही रखते हैं, ठीक है। और अब आप चाहें तो जीएसटीएन को फिल्टर में डाल सकते हैं और नाम भी हटा सकते हैं। तो ये इनवॉइस नंबर आ गए, ठीक है। इनवॉइस नंबर आ गए, नंबर 125, जैसे लग रहा है सीरियल नंबर है, लेकिन दीज आर नॉट सीरियल नंबर, दीज आर इनवॉइस नंबर, करेक्ट। अब देखेंगे सर कि ये जो डेटा है हमारे पास, ये जो फिल्टर हुआ है, ये इनवॉइस नंबर के बेसिस पे हुआ है, ठीक है। और जीएसटीएन ऑल सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप किसी एक पार्टी का रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं तो आप सबको ऑल को सिलेक्ट कर दें और एक पार्टी ले लें। कोई भी एक पार्टी ले ली मैंने, इससे एक ही इनवॉइस है, हमने देख लेते कोई ऐसी पार्टी जिसकी मल्टीपल इनवॉइसेस हो, ठीक है। तो वो तो डेटा से ही पता पड़ेगा, बट आई विल सिलेक्ट सम पार्टी। एक ये है जैसे ये जो थी 19AABCH6710N, तो हमारा पिवट कहाँ बना था, यहाँ पे, राइट। तो 1917H617H, so it has many invoices, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया। Now if you want to do a reconciliation of party, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आप सबको देखेगा ये इनवॉइस नंबर है। यहाँ पर बुक्स में कुछ भी अमाउंट नहीं आ रहा है, मतलब बुक्स में कोई भी फिगर नहीं आ रहा है, और जीएसटीएन पोर्टल पे आ रहा है। ये इसका जीएसटीएन टैक्सेबल वैल्यू है, ये सीजीएसटी है, और एसजीएसटी वाला कॉलम कहाँ गया, हाइड हो गया शायद, हाइड हो गया। ये जीएसटीएन एसजीएसटी वाला अमाउंट है, ठीक है, स्टेट का। और ये तो आप देख रहे हैं कि आपको जीएसटी मतलब पोर्टल पे तो वैल्यूज दिख रही है, लेकिन बुक्स में वैल्यू नहीं दिख रही। नाउ व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दिस मीन, we are reconciling party wise GSTN now। तो इसमें आपको क्या क्या समझ में आया सर जो मैंने किया, not in books, correct, not in books। तो now we can insert a column over here, ठीक है। दो कॉलम हम डाल सकते हैं कि जहां पे आपको 00 नजर आ रहा है वो नॉट इन बुक्स है, इनवॉइस नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, करेक्ट, इनवॉइस नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। सो आई कैन ईदर हाईलाइट दिस यूजिंग सम कलर, तो ये मेरा बुक्स, और यहाँ पे मैं इस कलर का एक इंडिकेशन दे सकता हूँ, नॉट इन बुक्स, ठीक है। तो आप इस कलर का एक इंडिकेशन दे सकते हैं कि ये भैया ये इनवॉइस जो है ये बुक में नहीं है, मतलब हमारे को ध्यान रखना है कि इसकी एंट्री बुक में करनी है, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कि ऐसा कोई इनवॉइस है जो बुक्स में है लेकिन
जो बुक्स में है लेकिन वो पोर्टल पे नहीं है। ऐसा कोई इनवॉइस है जो बुक्स में है और पोर्टल में नहीं है। बुक्स पोर्टल ये सब मैच हो रहा है। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है, दिस डिफरेंस is because of only one invoice. This difference is because of only one invoice which is there in the portal and which is not there in the books. और आप अगर जीएसटीएन पे भी देखेंगे, सीजीएसटी माइनस एसजीएसटी अगर आप करते हैं तो भी ये एक ही इनवॉइस के कारण यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। बट दिस इज वन पार्टी रिकंसिलिएशन। हमारे पास 50 पार्टी हो सकती है, 100 पार्टी हो सकती है, क्या हम इसका अलग से करने बैठेंगे इतना सब कुछ? क्या इसका कोई तरीका है कि इसको ऑटोमाइज किया जा सकता हो? This is not giving me the correct answer, but हाँ इसको एक काम करते हैं, is equals to this minus this 1971 this is the just number। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ से इशू आ रहा है। तो एक हमने ये देखा कि जब हम पिवट टेबल बनाते हैं, और मैं पिवट टेबल का स्ट्रक्चर आपको फिर से दिखा देता हूँ कि आपको यू कैन क्लिक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यू कैन क्लिक अ इमेज ऑफ दिस, और आप उससे ट्राई कर सकते हैं कि आप दोनों डेटा को कंबाइन कर लें। कंबाइन करने के बाद जीएसटीएन और नेम आप फिल्टर में डाल दें, इनवॉइस नंबर रो में डाल दें, और आपको रिमार्क्स कॉलम जो है पहले वैल्यूज रखनी फिर रिमार्क्स रखनी। तो उससे क्या होगा कि वैल्यू को वो रिमार्क्स वाइज मतलब बुक्स और जीएसटीएन के हिसाब से अलग अलग पास पास में प्लेस कर देगा। और आप टैक्सेबल वैल्यू आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ये सब एक साथ रख सकते हैं। ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग द रिकंसिलिएशन। ठीक है, कैसा लगा सर आपको ये सब? देयर आर पीपल हु आर actively participating, so just can I have feedback कि how did you find this reconciliation style? कभी आपने ऐसा बनाया? Have you ever tried this kind of reconciliation? Those who know pivot table, कभी आपने pivot के साथ ऐसा reconciliation किया? Very useful. No, no, people are saying yes. Okay, KJ is saying yes. Okay, fine. So this is one kind of reconciliation which we can do. ठीक है, लेकिन एक अगर ये तो माइक्रो लेवल पे हो गया, पार्टी वाइज। ठीक है, yes, thank you. But either name or GST should be there. Yes, so name or GST should be there. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? Again, what we will do is we can again put the name over here also. ठीक है, अब ये देखिए नाम भी हो सकता है, नाम और जीएसटी हमने डाल दिया, लेकिन उससे अब क्या होता है सर कि यहाँ पे ये डेटा ऐसा हो जाता है। एक मिनट, if I just remove this filter, I will clear this filter from the GST. Okay, now you will see all the data, but अगर आप इसको खोलेंगे तो आपके पास अंदर डिटेल आएगी, ये डमी और ये रिपीट भी होगा। इसका एक और तरीका है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू द पिवट टेबल ऑप्शंस, और डिस्प्ले में आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्लासिक पिवट टेबल लेआउट। ठीक है, मैं पिवट टेबल ऑप्शन में गया, ऑप्शन में डिस्प्ले के अंदर आप ये सिलेक्ट करेंगे और आप ओके कर देंगे। ठीक है, अब आप जब ओपन करेंगे इसको तो आप देखेंगे कि एक ही रो में सब चीजें दिखेगी आपको। ठीक है, और आप यहाँ से ये टोटल सब टोटल हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सब टोटल हटाने के लिए ये इस पे अनचेक कर देंगे। आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस एंटायर टेबल एंड आई विल जस्ट से सब टोटल यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, इफ यू एक्सपैंड ऑल, सॉरी यहाँ से आपको हटानी पड़ेगी सब टोटल, सो यू विल राइट क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ से आप ये सब टोटल हटा सकते हैं। ठीक है, अब आपको देखो ये सारा एक साथ दिख रहा है, ये पार्टीज हैं जिनका एक एक बिल ये है हमारे पास, ये बिल नंबर है, इसका बुक्स से ये अमाउंट आ रहा है, इससे आ रहा है, और ये आपका अलग अलग आ रहा है। ठीक है, नाउ इसको और थोड़ा सा ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अनग्रुप आल्सो। फाइन, यस वी कैन अनग्रुप आल्सो। तो अनग्रुप करने के लिए यू कैन से अनग्रुप, करेक्ट। अब आप इस पर्टिकुलर कॉलम को हाइड भी कर सकते हैं, अगर आपको नाम नहीं दिखना, you can hide it and you can see this separately. Okay, correct. So this is one option, but what I will suggest is कि थोड़ा सा और बेटर अगर आपको जाना है, एक स्टेप और फर्दर जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने ये पिवट बनाया था,
इस पिवट के बाद यहाँ पे आप जो कॉलम आपको नहीं चाहिए उसको आप हाइड कर दें। लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन हैव योर ओन कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने क्या करा, ये जो पिवट बना था इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। सी पिवट में एक लिमिटेशन है कि पिवट के अंदर आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट डू एनी कैलकुलेशंस इनसाइड द पिवट, बट ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट द डेटा फ्रॉम द पिवट। तो ये जो भी पिवट बना है इसका मैं डेटा कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की मदद से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो जब ये डेटा आ जाएगा, है ना, तो आपको ये इस तरीके से कुछ डेटा दिखेगा, मतलब जहाँ पे सारे जीएसटीएन है, उसके साथ सप्लायर का नाम है, इनवॉइस नंबर है, और आपके पास बुक्स और जीएसटीएन, बुक्स और जीएसटीएन, बुक्स और जीएसटीएन, इस तरीके से ये वैल्यू चल रही है साथ। ठीक है, ये कॉलम की हमारे को जरूरत नहीं है, हम इनको क्या कर देंगे, और यू कैन हाइड देम। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पे जो ब्लैंक्स कॉलम है, ओके, एक चीज और ध्यान रखेंगे आप लोग, जब हम इसको पेस्ट कर रहे हैं, व्हेन यू वांट टू पेस्ट दिस डेटा, तो आप पेस्ट स्पेशल का यूज में लेंगे और पेस्ट स्पेशल में जाके आप वैल्यूज पेस्ट करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, पिवट पूरा फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। तो यू हैव टू सेलेक्ट पेस्ट स्पेशल, राइट? थैंक यू। या यू कैन अनग्रुप और यू कैन यूज पेस्ट स्पेशल, सो आई एम यूजिंग पेस्ट स्पेशल, वो ज्यादा ठीक है। तो ये पेस्ट स्पेशल हमने करा, और अब आप देखेंगे कि डेटा थोड़ा सा हमको क्लीन करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी डेटा में, बट इट विल मेक सेंस, ठीक है, ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। तो मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, ऑर्गेनाइज कर देता हूँ और इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे आपके पास जो डेटा आ गया है वो हमारे पास सप्लायर लेवल का डेटा है, इनवॉइस लेवल का डेटा है, और यहाँ पे बुक्स और कॉलम जीएसटीएन आ गया। अब आप सिंपली क्या करोगे, दिस माइनस दिस, ठीक है, और ये आपको एंड तक ये फॉर्मूला कॉपी कर देना। जहां तक आपका डेटा जा रहा है, ये ब्लैंक रो भी आप हटा दें, ये ग्रैंड टोटल भी कॉपी होके आ गया था, इसको हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर सम का, और इसको आप कॉपी कर दोगे यहाँ, ठीक है, और आप यहाँ पर भी हम ये फॉर्मूला कॉपी करेंगे। ठीक है, अब इसको कंट्रोल शिफ्ट अप एरो कंट्रोल डी, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस जहाँ पे भी है ना वो आपको हाईलाइट हो जाएंगे। देन आपको क्या करना है, आपको फिल्टर लगाना सिंपल सा, ठीक है। सो आई एम जस्ट शोइंग यू फॉर टैक्सेबल वैल्यू, यू कैन डू द सिमिलर थिंग फॉर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू देन इज सेलेक्ट द एंटायर डेटा, कंट्रोल ए, पुट फिल्टर्स, एंड यहाँ पे जहाँ पे ब्लैंक था वहां पे आप लिख देंगे डिफरेंस, एंड यू विल फिल्टर ऑन द नॉन जीरो वैल्यूज। तो आप देखेंगे इतने सारे वैल्यूज आ गई हैं, आप यहाँ पे ब्लैंक हटा देंगे एक तो, और दूसरा जो जीरो आ रहा है, सो जीरो आ रहा है हमारा यहाँ पे, इसको हटा देंगे। जीरो मीन्स देयर इज नो डिफरेंस, so you will see that all the places where you are finding a difference it will come, ठीक है। दूसरी चीज, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आप इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेट पे जाएंगे, और आप सिलेक्ट कर देंगे हाईलाइट सेल रूल्स, और व्हाट यू कैन सेलेक्ट इज, यू कैन से कंट्रोल जी, सॉरी कंट्रोल जी आप यूज में कर सकते हैं, और स्पेशल में जाके आप कर सकते हैं ब्लैंक, ब्लैंक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने सारे सेल वो सिलेक्ट कर लिए जहां पे भी क्या आ रहा था, ब्लैंक आ रहा था। ब्लैंक का मतलब क्या है कि ये इनवॉइसेस बुक्स के अंदर नहीं है, ये इनवॉइसेस क्या है, बुक्स के अंदर नहीं है। ऑल्ट एच वी वी, हाँ, दैट इज द शॉर्टकट की फॉर पेज स्पेशल, करेक्ट अनुराग, राइट, करेक्ट। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेलेक्ट द ब्लैंक सेल, और आप ब्लैंक सेल सेलेक्ट करने के बाद वहां पे लिख सकते हैं कि नॉट इन बुक्स, नॉट इन बुक्स। मैंने कॉपी करा, और अगेन कंट्रोल जी, एक बार फिर से बता रहा हूँ, कॉपी कर रखा है मैंने, कंट्रोल जी में गया, स्पेशल में गया, और हमने सिलेक्ट कर लिया ब्लैंक,
सॉरी, पहले आपको ये डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा, कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल सी मैंने यहाँ कर लिया, और ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जी कर रहा हूँ, स्पेशल, एंड यू विल से ब्लैंक, ओके, और आप कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप देखेंगे वी हो गया है, तो यहाँ पर आपको, सॉरी, ये जो डिफरेंस आ रहा था यहाँ हमें करना था, यहाँ 0 आ रहा है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे भी ये ब्लैंक आ रहा है, इधर यू कैन पुट अ हाइलाइटर ओवर देयर, ठीक है, हाईलाइट डाल दो आप, ताकि आपका फॉर्मूला डिस्टर्ब ना हो, और आपको पता पड़ जाएगा कि इन इनको मुझे देखना है, इन इनवॉइसेस को मुझे मेंशन देखना है, क्योंकि ये वाले इनवॉइसेस मेरे पास बुक्स में नहीं है। So this is how you can do a reconciliation using pivot. Okay, fine, fine. So next time I will do that. I will share the file also. I will share this file in the group, in the Zoom chat also, and in my groups also. I think you must have joined through my WhatsApp group, which is there. If you have not joined through that, I will share in the Zoom, और अब वहां से ये फाइल डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आइडिया इज कि यू जस्ट सी एंड लर्न, देन यू कैन प्रैक्टिस, क्योंकि दोनों एक साथ करते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। बट टेकन, आई हैव नोटेड योर सजेशन, नेक्स्ट टाइम आई विल डू दैट, ठीक है। तो दिस इज वन वे ऑफ पिवट टेबल। पिवट टेबल हमने डिस्कस किया। अब मैं क्विकली आपको एक्स लुकअप बता देता हूँ, ठीक है। दैट इज अगेन अ वेरी पावरफुल टूल ऑफ एक्सेल, and in 10 minutes we will finish it, and then we can wrap up the session. If you have any queries, we can have a Q&A also. Okay, so now हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये जो इनवॉइसेस हैं जो हमारे पास बुक्स में है, क्या वो पोर्टल पे आ रही है, पहली चीज, और जो पोर्टल पे इनवॉइसेस आ रही है क्या वो हमारे पास बुक्स में है क्या, ये दो चीजें मुझे चेक करना है। तो ये कैसे कर सकता हूं मैं, इसके लिए आई कैन यूज अ फॉर्मूला, इसके लिए आई कैन यूज एक्स लुकअप। तो आप क्या करेंगे, आप पहले डेटा सेलेक्ट करेंगे जो आपके पास बुक्स में है, और उसी के पास में आई एम ब्रिंगिंग दिस शीट वेयर आई हैव द डेटा फ्रॉम द पोर्टल, ठीक है। तो ये मेरे पास बुक्स में डेटा है, ये मेरे पास पोर्टल का डेटा है, करेक्ट। नाउ व्हाट आई विल डू इज दिस इनवॉइस नंबर आई विल हैव टू प्लेस ऑन द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। मैं अगर एक्स लुकअप लगा रहा हूं तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे करेंगे रिको विथ पोर्टल, ठीक है। एक कॉलम बनाया मैंने रिको विथ पोर्टल, और यहाँ पे पोर्टल पे आप बनाएंगे रिको विथ बुक्स, रिको विथ बुक्स। These are the two column which I have created new, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम बना रहे हैं रिकंसिलिएशन विथ बुक्स, और यहाँ मैंने बनाया है रिकंसिलिएशन विथ पोर्टल, ठीक है। नाउ जस्ट फोकस हियर व्हाट फॉर्मूला आई एम पुटिंग, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों कॉलम काम के नहीं है, इनको मैं अभी हाइड कर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली व्हाट आई वांट टू सी इज कि ये जो इनवॉइस नंबर है ये इधर भी आ रहा है, ये इनवॉइस नंबर यहाँ पे भी है, क्योंकि इनवॉइस इज द कॉमन थिंग व्हिच इज देयर इन बोथ द प्लेसेस, चाहे बुक्स हो या पोर्टल हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स लुकअप, यू विल पुट दिस फॉर्मूला ऑफ एक्स लुकअप। और एक्स लुकअप क्या करता है, एक शीट में से डेटा उठा के दूसरी जगह उसको चेक करता है। तो आई वांट टू सी दिस, आई वांट टू फाइंड दिस, ठीक है। ये मैं ढूंढना चाहता हूँ, कॉमा, कहाँ ढूंढना चाहता हूँ, इस शीट के अंदर ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है। इस शीट के इस कॉलम में, टू बी वेरी प्रिसाइज बिकॉज वी आर यूजिंग एक्स लुकअप। तो वही कॉलम सेलेक्ट करना है जिसमें आपका डेटा हो सकता है, जिसमें आपका इनवॉइस नंबर हो सकता है, कॉमा, ठीक है। ये दोनों शीट ग्रुप हो गई है, ठीक है। आई थिंक इट विल नॉट वर्क, मैं फिर से एक बार कर लेता हूँ। तो इज इक्वल्स टू एक्स लुकअप, this invoice I want to see, and I want to see here, ठीक है, in this particular column. I will select the entire column, control shift down arrow, comma, ठीक है। तो ये इसने लुकअप आ गया। अब रिटर्न एरे, रिटर्न एरे क्या होगा, अब आप उसमें कुछ भी दे सकते हैं कि अगर ये इनवॉइस नंबर यहाँ पे मिल जाता है, अगर ये इनवॉइस वहां पर भी है, तो आप टैक्सेबल वैल्यू ला दो, उधर से टैक्सेबल वैल्यू ला दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू वाले कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, दिस इज माय रिटर्न एरे, ठीक है, कॉमा।
अगर रिटर्न एरे मतलब ये इनवॉइस नहीं मिला तो आई वांट टू हैव एन एरर नॉट फाउंड, ठीक है, नॉट फाउंड ये मिलना चाहिए, ये लिखा हो जाना चाहिए कि नहीं मिला हुआ, ठीक है। और मैच मोड हम कैसे चाहते हैं, एग्जैक्ट मैच चाहते हैं तो हम 0 लगा देंगे, वी विल पुट अ 0 ओवर हियर, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, नॉट फाउंड, दिस इज सम, ठीक है, ये नॉट फाउंड आ जाए और इसको हम क्लोज कर देते हैं, एंटर, ठीक है। देखो पहला ही शुरुआत होगी नॉट फाउंड से, explain again return array, okay, let me complete, I will just explain again, चलिए। तो एक्स लुकअप जो पहली बार देख रहे हैं वापस से देखते हैं। एक्स लुकअप में हमने क्या करा, पहले हमने C2 सिलेक्ट करा, C2 क्या है, इनवॉइस नंबर। इस इनवॉइस को आप कहाँ ढूंढना चाहते हैं, हम एज पर जीएसटीएन वाले इनवॉइस वाले कॉलम में ढूंढना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ से ये इनवॉइस नंबर वाला कॉलम सेलेक्ट करा, उसका एड्रेस था C। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एड्रेस आ रहा है आपका वो टेबल 1 इनवॉइस नोट नंबर आ रहा है, कॉमा जब ये इनवॉइस इस टेबल में मिल जाए नेक्स्ट वाले शीट पे, तो आप वहां से मुझे टैक्सेबल वैल्यू लाके दे दो। क्या लाके दे दो, टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू का कॉलम कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू लाके दे दो। और अगर ना मिले तो आप मुझे एक मैसेज दे दो, नॉट फाउंड, यू गिव मी अ मैसेज नॉट फाउंड, ओके, एंड वी क्लोज द ब्रैकेट। अब जब मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, सो आई विल गेट द आंसर्स, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, जहां जहां पे भी इनवॉइस इसको नहीं मिली वहां पे इसने लिख दिया नॉट फाउंड, जहां जहां उसको मिल गई है वहां पे उसने टैक्सेबल वैल्यू मुझे फेच कर दी, ठीक है। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, इफ आई डोंट वांट टू यूज पिवट टेबल, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं डिफरेंस इन टैक्सेबल वैल्यू, करेक्ट। और आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस टैक्सेबल वैल्यू माइनस दिस, ठीक है। और यहाँ पे अगर एरर आता है कुछ तो यहाँ पे लगा देंगे इफ एरर, और ओपन करेंगे ब्रैकेट और यहाँ पे लिख देंगे नॉट अवेलेबल, NA लिख देंगे, NA नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो आपको एरर नहीं आएगा, ठीक है, एरर नहीं आएगा इससे। और इसको मैं नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ, या अगेन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट डबल क्लिक, ठीक है, NA आ गया। और आप देखेंगे कि यहाँ पे सब जगह डैश आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है, देयर इज नो डिफरेंस। यहाँ डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो जहां भी डिफरेंसेस आ रहे हैं वहां आप स्टडी कर सकते हैं कि भैया टैक्सेबल वैल्यू में क्या गड़बड़ हो गई, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू है 2,44,977, यहाँ पे आ रहा है 19,827, ठीक है। तो इस इनवॉइस को हम स्टडी कर सकते हैं कि जो इनवॉइस नंबर 2 है बुक्स में, क्या ये यहाँ पर भी 2 ही नंबर वाला इनवॉइस इसने उठाया या कुछ और तो नहीं उठा लिया। तो आप इनवॉइस नंबर पे जाएंगे और कंट्रोल F करके ये 2 ढूंढ सकते हैं। अब 2 तो बहुत जगह होगा, तो कैसे देखेंगे कि ये इनवॉइस नंबर 2 है क्या, सिंगल नंबर 2, ठीक है। तो उसके लिए आप ये देखिए, यहाँ मिल गया मुझे, ये रहा, दिस इज द इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पे ये जो इनवॉइस नंबर है इस पार्टी का, इसका अमाउंट आ रहा है 19,827, और हमारे पास जो इनवॉइस है उसका अमाउंट कुछ आ रहा है, एग्जैक्ट मैच, यस यस यस। तो यस, perfect, let me just introduce this concept of advance, this exact match also. So I skipped it but I will introduce that. मैं यहाँ पे now we will see this, there is one more thing over here। यहाँ पे आप जब ये लिखते हैं तो मैच मोड आता है, कॉमा मैच मोड में हम एग्जैक्ट मैच कर देंगे 0। एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या होता है कि वो पूरा इनवॉइस चेक करेगा, मतलब इनवॉइस में वर्ड टू वर्ड, जैसे A1 लिखा हुआ है और A01 लिखा हुआ है, तो A1 को A01 से मैच नहीं करेगा, तो हम मैच इसको 0 कर देते हैं बाय डिफॉल्ट, अगर नहीं होता है तो 0 ही देता है। और सर्च हम कर देंगे फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है। तो 0 और 1 लगाना है आपको,
and then again you can put up, you can just copy this formula. ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहा, ठीक है, वो ऐसा है। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंसेस आ जाएंगे। अगेन यू कैन फिल्टर दिस डेटा, कंट्रोल शिफ्ट एल, और आप यहाँ पे जो यहाँ पे भी डिफरेंसेस आ रहे हैं सेलेक्ट ऑल में आप ऑल रहने दें, यहाँ पे ये डैश हटा दें और एनी हटा दें, बाकी सब जगह आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे। यू कैन स्टडी दीज डिफरेंसेस, व्हाई देयर आर डिफरेंसेस। ओके, एक तरीका ये है। सेम थिंग वी विल डू हियर। पोर्टल से जब बुक्स चेक करना है तो आप यहाँ पे भी लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स लुकअप, and you will see that I want to search this invoice number. So where is that invoice number? Here it is, the invoice number. Invoice number comma lookup array कहाँ ढूंढना है? इस बार हमारे को बुक्स के अंदर ढूंढना है, तो बुक्स का वो वाला कॉलम जिसमें इनवॉइस नंबर है, ठीक है। आई विल जस्ट रिमूव द फिल्टर फर्स्ट, तो मैं यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल, इट विल रिमूव द फिल्टर, and I will go here and is equals to x lookup. Again you will select this invoice number comma this invoice you want to search here, इस वाले कॉलम में, ठीक है। तो आप इसको शुरू से शुरू कर देंगे, यहाँ से आप पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से लेके एंड तक, ठीक है, कॉमा if I find this invoice number here then give me the taxable value again, or you can use the CGST SGST, but वो IGST का पंगा होगा, तो आप taxable value ही ले ले। तो taxable value वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि वो रिटर्न एरे कहलाता है, ठीक है। कॉमा लास्ट में हमसे पूछा जाता है कि अगर नहीं मिला तो क्या करें, तो बोल दो भैया नहीं मिला, नहीं मिला, ओके, कॉमा, और एग्जैक्ट मैच कर देते हैं 0 और सर्च कर देते हैं, और ये इसको कर देते हैं, ठीक है। तो नाउ व्हाट यू विल सी इज यू विल सी दैट वी हैव गॉट दिस आंसर, ठीक है, और इसको आप ड्रैग कर लें नीचे तक, देखो नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, इतने सारे इनवॉइसेस नहीं मिले, ठीक है। अब जो नहीं मिले वाले कैटेगरी के हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, अगेन यू कैन अप्लाई फिल्टर ओवर हियर, तो कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर लग जाएगा, और फिल्टर लगने के बाद आप यहाँ पे इन सबको अनचेक कर दें और जो नहीं मिला है उसको टिक कर लें। अब आप देखेंगे कि ये सब पोर्टल पे तो है इनवॉइसेस, बट अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल सी और इस वाली शीट पे जाता हूँ बुक्स पे और करता हूँ कंट्रोल वी, तो इट इज नॉट फाउंड, मतलब कॉपी पेस्ट, मतलब फाइंड करके देख लिया लेकिन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो नहीं मिल रहा है, तो ये देखिए ये वाली सीरीज के इनवॉइसेस हैं हमारे पास, ठीक है। मैं इनके मतलब ये वाली सीरीज के इनवॉइसेस हैं बेसिकली, एंड दिस इज आल्सो द सेम सीरीज, बट यू विल सी दैट यस 071017L ये वाला जो है ये यहाँ पर है और यहाँ पे नहीं मिला दिखा रहा है, ठीक है, बट इट इज देयर, फाइंड, इट इज देयर बट इट इज शोइंग मी नहीं मिला, तो ये तो गलत हो गया, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। Can anyone tell me the reason, the probable reason why it is not giving me the correct answer? ये वाला इनवॉइस जब मैंने चेक करा तो ये यहाँ पर है पोर्टल में, ये बुक्स में भी है, here it is, तो it should have given me the answer, यहाँ तो आ गया, वहां क्यों नहीं आया? What could be the reason? I will tell you the reason, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या गलती हो गई हमसे, ठीक है, और ये गलती हो सकता है बहुत ही सिली मिस्टेक है बेसिकली देखा जाए तो क्या हुआ कि जब आपने ये टेबल सेलेक्ट करी, ठीक है, यहाँ पर आपने एक्स लुकअप लगाया, एक्स लुकअप में ये वैल्यू उठा ली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब आपने ये कॉलम सेलेक्ट करा C1 से लेके C09, तो आपने हेडिंग सेलेक्ट नहीं करी, हेडिंग सेलेक्ट करते तो दिक्कत नहीं होती, हमने रेंज सेलेक्ट करी है, तो इसको फ्रीज करना पड़ेगा, आप F4 दबाएंगे यहाँ। सिमिलरली जो रिजल्ट आना है उसको भी फ्रीज करना पड़ेगा, आप F4 दबाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी आप ध्यान रखिएगा 1 से लेके 109 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 से लेके 109 आ रहा है, लेकिन जब आप नीचे देखेंगे तो ये 1 की जगह यहाँ पे 6 हो गया है, तो मतलब ये
रोज को शिफ्ट कर रहा है। अब आप देखेंगे, इसको मैं वापस से अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मूले को, एंटर, and you will see that now I am getting the answers. Now I am getting all the answers, but मुझे कुछ जगह पे नहीं मिला है, बाकी जगह पे आंसर्स आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी रेंज सेलेक्ट करते हैं एक्सेल में, तो उसको फ्रीज कर लें कॉपी पेस्ट करते हुए। ठीक है, जो लोग एक्सेल बहुत कम काम में लेते हैं उनके लिए थोड़ा सा हैवी हो सकता है आज वाला सेशन, क्योंकि मैंने काफी सारे छोटे छोटे कंसेप्ट बताने की कोशिश करी है, बट बिकॉज वी वर डूइंग इट, तो आई थॉट कि लेट अस डू इट प्रॉपर्ली। ठीक है, तो नाउ यू हैव दिस। अब आप देखेंगे ये वाला मैं कॉपी करता हूँ और मैं इसको जाता हूँ बुक्स में जाके चेक करता हूँ, तो इट इज एक्चुअली नॉट देयर इन द बुक्स। ये वाली सीरीज में आप देखेंगे 1500 नंबर का इनवॉइस नहीं आ रहा है, so it is not actually not there in the books. So this is how you can use XLOOKUP for reconciliation, and you can use pivot table for GST reconciliation. That was all from my side. Now if you have any question and answer, we can take up. I'm small doubt. Okay, I'm sharing the link to the. I'm sharing this file in the chat box. You can download this file and you can use it for practice or for reference. I will also share my channel link so that you can subscribe to it, and you will find the video link also on the channel. So there is one question, says small doubt, whatever we do with XLOOKUP, can we do in VLOOKUP? Can you highlight any additional advantage? Okay. So VLOOKUP, there is a limitation. What limitation is there? Then in VLOOKUP, you have to arrange your data simultaneously. Like आपका जो, I will again share my screen. First, I will share this Excel file. Wait. So I will share this Excel, और मैं आपको बताता हूँ कि VLOOKUP हमने क्यों काम में नहीं लिया। ठीक है, and if you can spare few minutes, I can explain how to do using VLOOKUP also, because if you are not using Excel 365, this will not work. What will not work? This XLOOKUP will not work if you are not using 365. Thank you. So I've shared the link of my channel. You can all subscribe to it. You will get this video link over the channel. Tonight I will upload it, and I'm sharing my file also, which I've used for the session. So you can just practice using this file. GST reconciliation. Yeah. So this file is also shared with you all. Okay. Now to answer this question, देखो क्या होता है, VLOOKUP में लिमिटेशन है। अगर आपका इनवॉइस नंबर आगे पीछे है तो आप नहीं कर सकते रिकंसिलिएशन, और XLOOKUP में क्या होता है कि आपका डेटा कैसे भी अरेंज हो, आप रिकंसिलिएशन इजीली कर पाते हैं। So it is always recommended to use, that is a better updated version of Excel formula XLOOKUP as compared to VLOOKUP. VLOOKUP will work only if your first column is having the invoice number in both the cases, in the data as per GST and in the data as per portal. ठीक है, तो मैं 1 मिनट और लेता हूँ सेशन को खत्म करने से पहले, क्योंकि डाउट है तो इसको भी एड्रेस कर लेते हैं। I will just request you all to be there for next 2-3 minutes. And let me just Hi there, I am Sialok Sethi. I'm a chartered accountant by profession and a mentor by passion. I'm on a mission to help people. Okay. So I think you all can see my screen now. Okay, now I'm going to address this query of VLOOKUP. ठीक है, तो मैं यहाँ पे बुक्स वाले पे एक कॉलम ऐड कर देता हूँ यहाँ पर VLOOKUP. ठीक है, I will share this file again so that you have the updated file. अब हमें क्या करना होगा कि if I have to use VLOOKUP, so first I will have to select this data again, और यहाँ पे लिखो, ठीक है। Now to apply VLOOKUP, what you will have to do is equals to VLOOKUP, comma, you will select this invoice number, क्योंकि हम यह lookup value इसी की ढूंढ रहे हैं, comma, then you will select the series, but you have to make sure that whatever you select, you have to remove the filter first from the data. Okay. Again, I will put the formula of VLOOKUP here. So is equal to VLOOKUP. Okay, I will just थोड़ा सा इधर ले आता हूँ.
Yes. Now what you will do is you will select this invoice number, comma. Now while selecting this range, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पूरा टेबल सेलेक्ट नहीं करना है. You have to start from the column which has the invoice number. तो आप यहाँ से select करेंगे, है ना? Better to select from the headers. So you will select the header and you will select the entire table and you will go till the end. Till the end मतलब कि till the column where the CGST, SGST, IGST is there. Okay. And now you have to count the column reference number because जब भी हम VLOOKUP काम में लेते हैं तो जो तीसरा डेटा पूछता है हमारे से, पहला होता है लुकअप वैल्यू जो हमने इनवॉइस नंबर लिया था जीएसटी शीट से. फिर हमारे पास टेबल एरे था जिसमें हमने पूरी टेबल सिलेक्ट करी. एक्स लुकअप में सिर्फ वो कॉलम सिलेक्ट किए जाते हैं, यहाँ पे इनवॉइस नंबर होता है. और फिर आप एक्स लुकअप में रिटर्न एरे देते हैं जिसमें हमने टेक्सुअल वैल्यू दिया था. यहाँ पे आप कॉलम का नंबर बताते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर. So from the invoice number, the column in which the taxable value is there is number 3. 1, 2, 3. So I will write down 3, comma. Now it will not give you the option to write error. If you do not find this value, then you cannot post any error. So what you have to do is you have to just close it using saying true or false. So हम exact match चाहते हैं उसके लिए false लिखेंगे and you will close this bracket. Okay, and you will say enter. शुरुआती NA से हो गई, ठीक है, and you will can drag it down. So same result you are getting जो हमारे को X lookup से आ रहा था वही result हमें को V lookup से भी आ रहा है. But the thing is that if I do any addition or any changes in the data, for example, अगर मैंने GSTN वाली शीट पे जाके और यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर दिया. If I insert any column, see what will happen here. This will give you 0 result. This will give you false result. क्योंकि आपने क्या करा, उसका अरेंजमेंट चेंज कर दिया है. ठीक है, I will just undo this and you will see that the results are back to normal. But it will not make any change here. It will not create any change. ये देखिए यहाँ पे आपने इस वाले कॉलम को एक कॉलम इंसर्ट करा, ये दो कॉलम इंसर्ट करे और यहाँ पे आपका ये आंसर चेंज हो जाएगा, 0 आ जाएगा. बट दिस इज नॉट चेंज. दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग XLOOKUP ओवर VLOOKUP. सो डेफिनेटली मतलब if possibility is there then you can use XLOOKUP. One more thing I will tell you, अगर आपके पास 365 नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, you can use Google Sheets for your calculations and that will help you with for free. You can use XLOOKUP for free in the Google Sheet. Okay, so those who want me to add them in my group, you can just WhatsApp me your name and location on this number, on my WhatsApp number. I will add you to my group. In the group we post regular updates on Excel and for CAs and other professionals as well. Okay, so my number is there in the chat box. I'm just posting it again. And yes, do we have XLOOKUP in Microsoft 21? I think XLOOKUP will be there in Office 21 as well. You can use. It is not there in 16 or 13. Below 13, 10, it is not there. But yes, definitely 21 will have XLOOKUP. Okay. Yes. So thank you all for joining in and sparing 1.5 hours for understanding what it was just an attempt to clarify because I was getting many queries on how to do reconciliation and now this annual return and audit time is near. So thank you all for taking out time. I've shared my number also. You can message me on WhatsApp. I will add you to my group and I've shared my channel link also. Request you all to subscribe to it and share it with your professional friends and colleagues so that it can help everyone. Okay, and now I will share this file again so that you can have the updated file and I will share the file in my groups also so you can download it from there as well.
Thank you all. If you still have any questions, we can take it, or I'll be conducting a similar session again in the next week, or maybe on a Saturday, Sunday. So hope to see you soon. Thank you all, and good night. Yes, before yes, before starting the session, I will share the file next time. Sure, sure, sure. Definitely, definitely, I will do that. Thank you.